children. The lesson, the world in my home is, there is a quarrel in Meredith's family about which program to watch over TV. Pratibha is hurrying home from her friend's home as it is 7 o'clock in the evening, but her brothers are still playing even if they are late. Nobody will scold them. Pilu auntie took Fali, Nazu and their friends to the beach and bought them icy cold kulfi. Kulfi seller, instead of charging for 7, by mistake charged for 5 kulfis. Pilu auntie paid the correct amount for 7 kulfis to him. Akshay's grandmother always tells him not to eat or drink anything at his friend Amit's house. Dhondu wants to start his new work for which he needs money, but his elder uncle, who looks after the money matters of the family, is not willing to agree to this. Ritu is afraid of Meena's uncle's touch. Now let us see the question answers of The World in My Home from class 4th EVS NCERT. Tug of war, let us talk. Question 1. In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? क्या आपके घर में भी इसी तरह से आपस में लड़ाई होती है फैंस को लेकर, न्यूज़पेपर्स को या टीवी चैनल्स को लेकर? Answer is yes. People at my home, especially my brother and I, quarrel over TV. हाँ, मेरे घर में मोस्टली मैं और मेरा भाई टीवी के लिए लड़ाई करते हैं. तो इस तरह से कोई भी रीज़न या कोई भी इंसिडेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस चीज़ को लेकर आपके घर में लड़ाई होती है आपस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन योर होम हु सेटल्स सच क्वारल्स? ऐसी लड़ाई होती है तो कौन समझौता कर लेता है, कौन समझाता है? आंसर इज सच क्वारल्स बिटवीन माय ब्रदर एंड मी आर सेटल्ड बाय आवरसेल्व्स. तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों एक दूसरे से बात करके समझ के इस लड़ाई को खत्म करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल ओवर सच थिंग्स. तो कोई भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताना है जब इस तरह से घर में लड़ाई हो जाती है आपस में, टीवी के रिमोट को लेकर, फैन को लेकर, कूलर, एसी, कोई और चीज़ को लेकर. Answer is a couple of days back my brother and I were fighting over TV. I wanted to watch the movie Tangle and my brother wanted to watch a cricket match. After a lot of quarrel we decided that whenever there will be advertisements in between the movie we would watch the match scores. अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल आंसर दिया है. जब भाई बहनों में या दो भाइयों में लड़ाई हो गई टीवी को लेकर तो उन्होंने आपस में ही डिसाइड करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर सीन पीपल quarreling over something elsewhere? What? Answer is yes, I have seen people quarreling over little things. For instance, I had once seen two of my cousins fighting over who will use the laptop. तो इस तरह की लड़ाई अगर आपने कहीं देखी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है कि हाँ मैंने देखा है, छोटी छोटी चीज़ों पे घर के लोग लड़ते हैं आपस में. और कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल अपने घर का इंसिडेंट लिख सकते हो. Why the difference? Let us talk. Question 1 is, does this kind of thing happen in your house or in any of your friends' house? What do you think about this? क्या इस तरह की कोई चीज़ आपके घर में या आपके फ्रेंड के घर में होती है? किस तरह की चीज़ें? जैसे बच्चों में डिफरेंसेस, गर्ल और बॉय में डिफरेंसेस, भेदभाव होना दोनों में. Answer is yes, this happens in one my friend's house. My friend Riya is supposed to get back home by 6:30 in the evening while her brother is allowed to stay out till 10 o'clock. This sort of discrimination is very unfair and harsh on girls or women. हाँ मैंने देखा है कि रिया को जो है घर पे 6:30 तक पहुंचना पड़ता है और उसका भाई जो है रात के 10 बजे तक बाहर रह सकता है. तो इस तरह के पाबंदियां सिर्फ गर्ल्स पे लगी हुई होती है बहुत से घरों में, और उस घर के बॉय जो है आराम से बाहर टहल सकते हैं, खेल सकते हैं, रहते हैं. उन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए नहीं होते हैं.
Now the next question, do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? क्या आपको ऐसे लगता है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग रूल होने चाहिए, वुमेन और मेन के लिए अलग रूल होने चाहिए? आंसर इज नो, आई थिंक द रूल्स शुड बी सेम फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, वुमेन एंड मेन। हाँ, मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबके लिए रूल्स एक जैसे हो, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, वुमेन हो या फिर मैन हो। Now the next question, think what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls। जरा सोचो अगर क्या होगा अगर गर्ल्स जो है बॉयज़ के लिए बने हुए रूल्स को फॉलो करेगी और बॉय जो है गर्ल्स के लिए बने हुए रूल्स को फॉलो करेंगे। आंसर इज इन एनी केस अनइक्वल रूल्स विल बी अनजस्ट टू वन और अदर gender, that's why it is best to have same rules for one and all। तो कोई भी अनइक्वल रूल जो है किसी के लिए भी अनजस्टिस हो सकता है, इसलिए सबके लिए एक जैसे रूल होने चाहिए। नाउ पिलू आंटी, क्वेश्चन 1, इफ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर द स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट? तो किस तरह से आप इस स्टोरी का एंड करेंगे? आंसर इज, इफ आई वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर द स्टोरी, आई वुड end it like, but Pilu aunty paid the money for 7 kulfis to the kulfi seller। तो किस तरह से आप इसका एंड करना चाहोगे ये यहाँ आपको लिखना है। Overwhelmed with Pilu auntie's honesty, the kulfi seller gave 1 extra kulfi to her। Pilu auntie insisted that she just did what was right, and thus he didn't need to return any favor। तो हमने ये स्टोरी देखी है। तो पिलू आंटी को जितनी कुल्फीज उन्होंने ली थी उतने ही पैसे देने चाहिए और उनको याद दिलाना चाहिए कि आपने 7 कुल्फीज दी थी हमें, इसलिए मैं ये पैसे आपको दे रही हूँ। इसमें कोई एहसान मानने की बात नहीं है। तो इस तरह से हमें ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। तो इस स्टोरी का एंड आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिलू आंटी? हु? क्या आपकी फैमिली में पिलू आंटी की तरह ऑनेस्ट है कोई? अगर है तो कौन है? आंसर इज यस, माय फादर एंड मदर आर लाइक पिलू आंटी। दे टू आर वेरी ऑनेस्ट एंड नेवर चीट एनीवन। Next question, what would the children have thought if Pilu aunty had paid less money to the कुल्फी seller? What do you think about this? अगर पिलो आंटी कम पैसे देती उस कुल्फी सेलर को तो उनके बारे में बच्चे क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हो? आंसर इज, इफ पिलो आंटी हैड पेड लेस मनी to the kulfi seller, the children would have got a wrong message that it is okay to take advantage of someone and being dishonest। We should always set good examples in front of children as their thoughts and habits depend on the elders around them। अगर पिलो आंटी पैसे कम देती तो बच्चे सोचते कि ऐसे करना सही होता है, इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से वो भी डिसऑनेस्ट हो जाते, बैड मैनर्स सीख जाते। तो हमें बच्चों के सामने हमेशा अच्छा एग्जाम्पल शो करना चाहिए जिससे वो अच्छी चीज़ें सीखे, अच्छी बातें उनके अंदर डेवलप हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू? टॉक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? आंसर इज, आई थिंक अक्षय विल ड्रिंक द वाटर बिकॉज ही मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टेड। अक्षय की दादी ने उसको मना किया था कि अमित के घर पे पानी नहीं पीना है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? पर अक्षय, तो मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि अक्षय को प्यास लगी थी तो उसको वहाँ का पानी ज़रूर पीना चाहिए। Why was अक्षय confused? कंफ्यूज क्यों था अक्षय? आंसर इज, अक्षय was confused because his grandmother had told him not to drink or eat anything from Anil's house। अब अक्षय को प्यास लगी थी पर वो कंफ्यूज था कि मैं पानी पीऊँ या नहीं पीऊँ, क्योंकि उसकी दादी ने उसे बोला था कि अमित का घर में पानी या कुछ खाना पीना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक अक्षय's mother warned him not to drink even water in Anil's house? तो अक्षय की दादी माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आंसर इज, आई थिंक अक्षय's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house because both the families were very different from each other। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय की दादी ने उसको पानी या खाने पीने से क्यों मना किया था, क्योंकि अक्षय और अनिल की फैमिली बहुत ही अलग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। तो यही सोच के दादी ने उसके घर पे खाना पीना मना किया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक्स लाइक अक्षय's grandmother?
क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह थिंकिंग जिनकी हो? आंसर इज यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर? क्या आप एग्री करते हो अक्षय की दादी माँ ने जो किया? आंसर इज नो, आई डू नॉट एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर। तो अक्षय की दादी माँ ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। हम लोग सब एक हैं, हमें सबसे बात करनी चाहिए, सबके यहाँ खाना पीना हमारा होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? तो अक्षय क्या करेगा? आंसर इज आई थिंक अक्षय शुड नॉट create any sort of discrimination between Anil and himself in the water offered by Anil। तो अक्षय यही करेगा, वो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा अनिल में और उसमें उसके बीच में, और अनिल ने जो पानी उसको ऑफर किया है वो उसको पिएगा। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, अक्षय की दादी की तरह भेदभाव नहीं करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डिसाइड? टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, इफ यू वर इन ढूंढू's प्लेस व्हाट वुड यू डू? जैसे हमने ढूंढू की स्टोरी देखी, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? आंसर इज इफ आई वर इन ढूंढू's प्लेस आई वुड हैव स्पोकन टू द एल्डर अंकल एंड अकम्प्लिश माय विश। मैं बड़े अंकल से बात करता और अपनी जो भी इच्छा है उसके बारे में बताता। Next question, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आप कुछ करना चाहते हैं पर घर के बड़े आपको वो करने नहीं देते, अलाउ नहीं करते हैं? Answer is yes, once I wanted to participate in a competition at a far away place but I was not allowed to do so by my father। हाँ, एक बार मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था पर दूर होने की वजह से मेरे पापा ने अलाउ नहीं किया। तो और कोई एक्सपीरियंस या आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आपके फैमिली में कौन इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आंसर इज द इम्पोर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली आर टेकन बाय माई फादर एंड मदर टुगेदर। आई थिंक इट इज अ गुड वे। मेरे फैमिली में मदर और फादर दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? आपको कैसे फील होगा जब एक ही पर्सन आपके घर का सारे डिसीजंस अगर लेगा? आंसर इज आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट मच इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर माई फैमिली। Any decision should be taken after consulting all the adults in the family। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही पर्सन को सारे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, आपस में डिस्कस करके फिर सारे डिसीजंस लेने चाहिए। आई डोंट लाइक इट, टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडीज टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? तो कभी ऐसे आपके साथ हुआ है कि किसी का टच आपको पसंद नहीं आया हो? तो इस तरह से ऐसे कौन है उनके बारे में डिस्कस कीजिए। आंसर इज यस, आई हैव डिसलाइक द इनएप्रोप्रिएट टच ऑफ फेलो पैसेंजर्स व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक बस। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया है कि पब्लिक बस में ट्रैवल करते टाइम किसी ने इनएप्रोप्रिएट टच किया था तो वो उसको पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर इन रितु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह होते तो क्या करते? आंसर इज आई वुड आल्सो डू व्हाट रितु डिड, आई वुड नॉट हैव गॉन। रितु को मीना के अंकल जो है इनएप्रोप्रिएट टच करते थे इसलिए रितु ने मीना के घर जाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? डिस्कस। ऐसा होगा तो क्या हो सकता है? आंसर इज सच थिंग्स शुड बी एस्केलेटेड टू पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन। ऐसा हो जाए तो बच्चों को पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। पेरेंट्स से ये बातें छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी अप्रोप्रिएट टच करता है तो आपको अपने पेरेंट्स से ज़रूर बताना चाहिए। क्वेश्चन 4, एवरीबडीज टच इज नॉट द सेम। Ritu did not like it when Meena's uncle held her hand, but she liked to hold Meena's hand. Why do you think there was this difference? तो हर तरह का टच जो है सेम नहीं होता है। रितु को मीना के साथ रहना अच्छा लगता था, उसका हैंड पकड़ना अच्छा लगता था, पर वही उसके अंकल जब उसका हैंड पकड़ते थे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसका आंसर है
There was this difference because Mina's touch was a friendly touch but Mina's uncle's touch was inappropriate. तो क्यों ऐसा डिफरेंस है? क्योंकि मीना का जो टच है, मीना जब हैंड पकड़ती है वो एज अ फ्रेंड पकड़ती है, पर मीना के अंकल जब हैंड पकड़ते हैं वो गलत तरीके से पकड़ते हैं, वो इनएप्रोप्रिएट टच होता है। तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर से है वो बैड टच है, जो येलो कलर से है मे नॉट लाइक, और जो ग्रीन कलर में है वो गुड टच है। तो आपको गुड टच और बैड टच में से का डिफरेंस समझना चाहिए, और अगर कोई आपको बैड टच करता है तो आपको अपने पेरेंट्स से ज़रूर बताना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर previous copy. Okay, bye. Thanks for watching.